संधान All Gujarat Integrated Classroom સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન. Good evening. Today we'll be discussing about learning and some of the theories and how to be put those theories into practice in the classroom. Let us discuss first of all what is learning, and before doing that let me tell you what education is. What is education? Education is ultimately what remains, जो रह जाता है. That is how we have changed during the process of education. Whatever is a permanent change in us, that makes our education, and that's what Maria Montessori has said. If we'll see the whole philosophy of education or the whole philosophy of teaching and learning can be summarized with the help of this quote, and this quote is something like this: I listen, I forget. मैं सुनता हूँ, मैं भूल जाता हूँ. I see, I believe. मैं देखता हूँ, मुझे विश्वास होता है. I do, I learn. मैं जब खुद करता हूँ तो मैं सीख जाता हूँ. If you see these two lines, अगर आप ये दो लास्ट वाले लाइन देखेंगे, the most effective means of teaching and learning or education is I see, I believe. मैं देखता हूँ, मुझे विश्वास होता है. I do, I learn. मैं करता हूँ तो मैं सीख जाता हूँ. If I participate, on behalf of learners I am telling, जब learners देखते हैं, when they get the exposure, उनको विश्वास होता है, उनको confidence होता है, और जब वो खुद करते हैं, when they become a part of the learning process, when they become a part of the teaching learning process, they start creating their own learning. वो अपना खुद ही खुद सीखने लगते हैं. So the challenge is to revolve around this two philosophy: I see, I believe, I do, I learn. In later part of my lecture, I will focus more on ये दोनों पार्ट को अपने क्लासरूम में कैसे लाना है at every level. So let us start learning, which is a first philosophy, first nature of learning is it is a never ending process. It continues till we die. The day we stop learning, we are almost, we don't exist. What is learning? Many people have tried to define learning in different ways. One of the most important definition of learning is a lifelong process of transforming information and experience into knowledge, skills, behaviors and attitudes. Please see it carefully. Learning is a lifelong process of transforming. Transforming it? What is the meaning of transformation? Transformation is permanent change. One gets transformed. Like it is a process of making carbon into graphite or carbon into diamond, that is transformation. Or milk into curd, that is transformation. Information and experience. Information, what is information? Information is just a piece of data. It's just a piece of data, and experience is our exposure, the exposure we get into knowledge. Try to understand here. See, like suppose we say all of us know we should work hard, but how many of us work hard? All of us know that we should follow traffic rule, but how many of us follow the traffic rule? So learning takes place if we start practicing on the information, if we start practicing on the experience. So the definition is learning is the lifelong process of transforming information and experience into knowledge, skills, behaviors and attitudes. Means whatever data you have, whatever information you have, you are trying to follow that. आप उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं. Let me tell you a very good story here. एक बार एक कैब सेलर था, वो गांव-गांव में जा कर के कैब बेचता था. He used to sell cabs.
एक बार वो दोपहर को, गर्मी की दोपहर थी, दोपहर को खाना खाने के बाद एक पेड़ के नीचे सो गया। उसके जो टोपियों की गठरी थी, कैप की टोपियों की गठरी थी, वो सर के नीचे सो गया। बाद में कुछ बंदर आए, उन्होंने गठरी खोली, पैकेट खोला, पूरा बंडल खोला और कैप पहन करके पेड़ पे बैठ गए। शाम हुआ, गोधूली का वक्त, जब सारे बर्ड्स अपने घोंसले में जा रहे थे, अपने नेस्ट में जा रहे थे, उसकी नींद खुली। उसने देखा उसका जो पोटला है टोपी का, कैप्स का, वो गायब है, एक भी कैप्स नहीं थे। उसने ऊपर देखा, पेड़ के ऊपर सारे बंदर उसकी टोपी पहन करके बैठे हुए थे और उस पर हंस रहे थे। उसको अपने पापा की बात याद आई। उसके पापा हमेशा उसको बोला करते थे, बंदर नकलची होते हैं, मंकीज ट्राई टू कॉपी ह्यूमन बीइंग। उसको ये बात याद आई। उसने क्या किया, उसके सर पे जो एक टोपी थी जो उसने खुद पहन रखी हुई थी, वो उसने निकाला और नीचे फेंक दिया। जैसे ये बंदरों ने देखा, सारे बंदर अपनी टोपी निकाल करके फेंकने लगे। वो धीरे धीरे सारे टोपी को कलेक्ट करता गया और फिर आराम से गठरी बना करके, पैकेट बना करके चला गया। इस तरह वो आदमी धीरे धीरे बूढ़ा हुआ। ही गॉट ओल्ड एंड ही थॉट ऑफ ट्रांसफरिंग हिज बिजनेस टू हिज एल्डर सन। अपने बड़े बेटे को वो अपना धंधा या रोजगार संभालने को बोला। उसका बड़ा बेटा एक दिन अच्छे से हवन कराई, सभी लोग आए, ट्रांसफरिंग द बिजनेस। अपने बच्चे को उसने बोला, बेटा एक ट्रेड सीक्रेट बताता हूँ, बहुत ही सीक्रेट बात है। एक कोने में ले गया अपने बच्चे को, बड़े बच्चे को, और बोला, बेटा कभी भी अगर ऐसा हो कि आप अपनी टोपी रख करके सो जाओ और सारे बंदर आपकी टोपी लेके चले जाएं, तो आप ऐसा करना कि आप अपनी टोपी नीचे फेंक देना और सारे बंदर आपको अपनी टोपी फेंक देंगे और आप फिर उसको लेकर के चले जाना। इस तरह से करके वो रिटायर हो गया। ये गुरु मंत्र दे करके वो रिटायर हो गया। वक्त गुजरा। कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराता है। वो बड़ा बेटा उसका अपना टोपी का धंधा करने लगा, टोपियाँ बेचने लगा, लोगों को पैसे लेकर टोपी पहनाने लगा। एक दिन वैसे ही वो सो गया पेड़ के नीचे। सारे बंदर आए, उसकी टोपी लेकर के चले गए, पेड़ पे बैठ करके बातें करने लगे। और जब इस बच्चे की नींद खुली, बड़े बच्चे की नींद खुली, तो उसने देखा कि उसकी सारी टोपी गायब है। उसने ऊपर देखा, उसकी टोपियां बंदर पहन करके उस पर हंस रहे थे। उसको अपने पापा की बात याद आई। उसने अपनी पापा की बात याद करके अपनी टोपी नीचे फेंकी और जैसे उसने वो अपनी टोपी नीचे फेंकी, ऊपर से एक बंदर दौड़ता हुआ आया। ही केम रनिंग एंड वो जो टोपी था वो निकाल के ले करके चला गया। उसके बाद सारे बंदर उस पर हंसने लगे और बोलने लगे, तुम्हारे पापा ने ये सिखाया, हमारे पापा ने हमें ये सिखाया। मतलब एक एक्सपीरियंस को एप्लीकेशन में लाना भी लर्निंग होता है। उसके फादर ने एक एक्सपीरियंस की थी, उन्होंने उसको अप्लाई किया और अपने बच्चे को भी बताया। बच्चे से गलती ये हुई कि उसने ये नहीं सोचा, उसको ये नहीं पता था कि ये जानवर भी अपने एक्सपीरियंस के अनुसार अपने व्यवहार को, अपने बिहेवियर को, अपने रिएक्शन को बदलते हैं। सो इट इज ओवरऑल transformation into knowledge, skills, behavior and attitude, that is overall 360-degree change in a person is called learning. Meaning, learning is a quantitative increase in knowledge. Learning is acquiring information or knowing a lot. Learning as memorizing. Learning is storing information that can be reproduced. Learning as acquiring facts, skills and methods that can be retained and used as necessary. These are some of the meanings. Learning as making sense or abstracting meaning. Learning involves relating parts of the subject matter to each other and to the real world. Learning is like getting information, storing it, recalling it, applying it,
Learning as interpreting and understanding reality in a different way. Learning involves comprehending the world by interpreting knowledge. Learning is like, there is a vast meaning of learning. Like, let me give you an example which you can tell me later on. Suppose I give you a quote. If you want to write, please write it. अगर मैं आपको एक quotation दूँ, only human walk to their left, animals don't. Only human walk to their left, animals don't. आप एंड में हम ये फिर से डिस्कस करेंगे, तब तक आप ये सोचते रहिए, ये एनालाइज करिए इसमें क्या क्या मीनिंग है. लर्निंग इज रिलेटेड टू एक्ट. कंसीव, किस चीज़ को कंसीव किया हमने? इन द फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंस, इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, कुछ कंसीव किया थ्रू डिफरेंट सेंसेस. फिर हम उस पर एक्ट करते हैं, फिर रिफ्लेक्ट करते हैं, फिर कंसीव करते हैं, फिर एक्ट करते हैं, फिर रिफ्लेक्ट करते हैं. इस तरह से ये सिलसिला चलता रहता है. लर्निंग इज़ नॉट स्टैटिक. अगर हम लर्निंग को स्टैटिक कर देंगे, इफ़ यू विल मेक लर्निंग स्टैटिक, देन वो जो कैप सेलर के बच्चे के साथ हुआ था वही होगा. बिकॉज एवरी टाइम एवरी स्पीसीज इज़ चेंजिंग. हर कोई चेंज हो रहा है इस दुनिया में. इसीलिए अगर हमने आज एक स्ट्रैटेजी सीखी है, if you have learned one strategy, the same strategy may not work in the different situation, or it may not work tomorrow. Learning as a process, it's a task conscious or acquisition learning and learning conscious of formalized learning. And there are many theories of learning. We'll discuss later on. Let me tell you principles of learning. Learning के क्या क्या सिद्धांत है. पहला तो ये कि मैंने ये बताया था, नंबर वन, लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. मैं हमेशा यही बोलता रहता हूँ, वन हैज़ टू बिकम ए लाइफ लॉन्ग लर्नर बिकॉज देर इज़ नो एंड. आई कीप ऑन टेलिंग, एंड वी शुड ऑलवेज रिमेंबर, वी शुड बिकम लाइक ए रिवर विच इज़ ऑलवेज फ्लोइंग, ऑलवेज फ्लोइंग. सिमिलरली एक चीज़ हमें डेली पूछना चाहिए, आज मैंने नया क्या सीखा, सो दैट वी आर ए रिवर, नॉट ए पॉन्ड वेयर वाटर इज़ stagnant. Learning should be whole, authentic and real. Whole activities as opposed to isolated skill exercises, authentic activities which are inherently interesting and meaningful to the student, and real activities that result in something other than a grade or a test. As I told earlier, जैसे मैंने स्टार्ट किया था मारिया मॉन्टेसरी के कोट से, लर्निंग इज़ व्हाट रिमेन्स. जो पकड़ लेते हैं, जैसे हम गंगोत्री में जाते हैं, गंगोत्री में कोई छोटी बॉटल लेके जाते हैं, कोई और बड़ी बॉटल लेके जाते हैं, कोई और बड़ी बॉटल लेके जाते हैं, वहाँ बहुत पानी है, लेकिन जो हमारी बॉटल में आ गया वो हमारा होता है. उसी तरह हम नर्सरी से लेकर के कॉलेज एजुकेशन तक जाते हैं, हम समाज में रहते हैं. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आपने जो पकड़ लिया, जो आप में परमानेंट चेंज आई, जो आपका हो गया, जिस इंफॉर्मेशन पे आपने अमल करना चालू किया, दैट इज़ योर लर्निंग. At this point I would like to tell you the difference between information and knowledge, क्योंकि ये दो शब्द का हम काफ़ी इस्तेमाल करेंगे. और फिर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि विजडम का मतलब क्या है. तीन शब्द जो लर्निंग में काफ़ी आते हैं, जहाँ भी आप पढ़ेंगे लर्निंग थ्योरीज या लर्निंग के बारे में आप जहाँ भी पढ़ेंगे, तीन शब्द आते हैं, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम. इंफॉर्मेशन क्या है? व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन इज जस्ट ए पीस ऑफ डाटा. लाइक ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. लाइक वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल. ये इन्फॉर्मेशन है. जब हम वो इन्फॉर्मेशन को अपने डे टू डे लाइफ में अमल करने की कोशिश करते हैं, जब हम इन्फॉर्मेशन का पालन करते हैं, इट बिकम्स नॉलेज. इट बिकम्स नॉलेज. लाइक एक सिंपल सा बात आपको बताता हूँ. स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, सबको पता है. हर सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है. हर किसी के पास एक इन्फॉर्मेशन की तरह ये अवेलेबल है.
लेकिन कितने लोग इस पे अमल करते हैं? पता चला लोगों को पता है दैट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन वो सिगरेट पीते हैं। इसका मतलब उनके पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। when you try to work on the information, जब आप इंफॉर्मेशन पे अमल करने लगते हैं, it becomes knowledge। जब आपके पास केवल इंफॉर्मेशन, एक डाटा रहता है, लेकिन उस पर अमल नहीं करते, it is just a piece of data for you। और जब आप इंफॉर्मेशन से नॉलेज के लेवल पे जाते हैं, लर्निंग हैपेंस। और जब आप नॉलेज के लेवल पर जाते हैं, यू स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टू इंफॉर्मेशन और नॉलेज, एंड देन यू बिकम ए वाइज पर्सन, जिसको बोलते हैं ज्ञानी व्यक्ति। ज्ञानी व्यक्ति वो होता है जो खुद का नॉलेज या इंफॉर्मेशन क्रिएट कर पाता है। सो लर्निंग इज नॉट ओनली फॉर द टेस्ट पर्पज। रहा क्या? what you have learnt, how you have changed, can you recall the information and use it, can you apply the information, ability to apply the information. There are 4 broadly theories of learning, 4 broad theories है learning के। पहले तो ये behaviorist model है। behaviorist model में जो theory है, इससे जो main साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने इस पे काम किया है, थ्रोंडाइक है, पैवलोव है, वाटसन है, गुथ्री है, हल है, टॉलमैन है, स्किनर है। व्यू ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, ये जो थ्योरी के मानने वाले हैं, ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका मानना ये है लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर। देखिए, एक मैं आपको बात बताना चाहूँगा, जहाँ तक लर्निंग की बात है या किसी भी कंसेप्ट को डिफाइन करने की बात है, कभी कभी ये ऐसा ही हो जाता है जैसे एक हाथी है। एक हाथी को 4 अंधे मित्र देखने गए, तो वो देख करके आए, हाथी को एक्सपीरियंस करके आए। आने के बाद अपने घर पे बैठ करके वो बातें करने लगे। वो खाना खाते वक्त बातें करने लगे